Yes. So good evening, everyone. I welcome you all on this platform of SSB Online Tayari. So today we have invited gentleman cadet Rohan Uppal. He will join Indian Military Academy in the upcoming 2 days. So he will take this question and answer round. So one by one, you can ask your doubts, everyone. Okay, just start asking the doubts one by one. Hello, sir. What should be the preparation for technical? What should the preparation for technical? Sorry, please repeat your question. For how should I prepare for my technical SSB TES 44? Okay. TS44. See, first of all, it is just like any other SSB. Okay? So they are looking for the same qualities. But yes, since you are going for a technical entry and you have secured a good percentage in your class 12, especially in your PCM subject, so definitely they will be expecting a certain level of awareness regarding your subject. So first and foremost is that you must brush up your knowledge regarding those subjects. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाओ और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल भी नहीं आता और आपने जस्ट क्या कहते हैं क्रैम करके मार्क्स ले लिए. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपको आने चाहिए. ये नहीं मैं बोल रहा कि आपको यू शुड नो एवरीथिंग अंडर द सन, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू आर गोइंग फॉर टेक्निकल एंट्री. सो दिस थिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. Rest Sir, everything is same for. Yeah. sir, and if sir, I'm a defense. I'm trying for to be in defense forces. So I'm thinking of permanent commission, sir. So, sir, by giving CDS, we will get permanent commission, or because rest all is SSC based. So for 14 years, both are equally valuable. But sir, अगर permanent commission के लिए sir CDS ही एक option है sir. नहीं, आप you have graduated in engineering stream or you are Yes, sir. non-engineer? I'm now engineer in I'm doing my BTech I'm in 4th year of SRM. See, so you have two options regarding permanent commission. First is definitely CDS, that is IMA, and second is TGC, Technical Graduate Course. ठीक है, so you can apply for both. TGC, you will be getting a benefit that you will be being trained only for 1 year, and moreover you will be getting a 1 year end date seniority. Yes. CDS, you won't be getting that. Okay, so if you are really interested in technical arms and you want to pursue a career in army within context of technical arms, you should go for TGC. That is valid for you. Hello, hello. अंशुल, Yes, yes. अभी क्वेश्चन आपने पूछा था एसआरएम से कौन है 4th ईयर, कौन सा कैंपस है भाई? नहीं, ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं था. सोनीपत sir, श्रीकांत. अच्छा श्रीकांत, ओके, go on, ask. Continuation to this question, I am Akshay, कि जो ये होती है एसएससी वाली एंट्रीज होती है, ये परमानेंट तो ऐसा नहीं है कि देखो अल्टीमेटली इट इज अ सिलेक्शन बोर्ड. ठीक है, वो रिजेक्शन बोर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा है कि दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन क्राइटेरियाज. अगर वो क्राइटेरिया 20 या 22 लोगों में नहीं मिलता तो दे वोंट टेक एनीवन, और अगर वो 20 या 22 में मिलता तो दे में सिलेक्ट द एंटायर बैच. तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि, और जो आपने बोला अभी कि कमांड टास्क मुश्किल नहीं मिला. सी, कमांड टास्क मुश्किल मिलना इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ रिकमेंडेशन. लेट मी टेल यू दिस, ऐसा नहीं होता है. काफी लोग होते हैं जिनको कमांड टास्क इजी मिलता है, बट देन आल्सो दे मेक इट. ठीक है, वो उनका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, हाउ डू मेक इट. बट हर बार हाँ, कमांड टास्क मुश्किल मिलने का ये मतलब होता है कि यू हैव डन गुड इन योर PGTs एंड अदर थिंग्स, HGTs. दैट मींस यू हैव गॉट द ब्रेन इन यू. ठीक है, आप फट्टा बल्ली और रस्सी को यूज करके आप कुछ कर सकते हो, इसीलिए उसने आपको मुश्किल दिया है. ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. बट ऐसे भी काफी लोग हैं जिनको कमांड टास्क काफी मुश्किल मिलता है एंड फाइनली वो रिकमेंड नहीं होते, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. और सेकंड बात जो आपने बोली कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं है. ये ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा आपको लग रहा है, बट जितना उसको पता करना है वो पता कर चुका है. ठीक है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसको अपना काम करना आता है और उसको पता है कि क्या करना है. ये और जब ऐसा लगे ना कि
कोई रिकमेंड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यू जस्ट कैन। अल्टीमेटली एसएसबी इज 5 डे प्रोसेस, 3 डे आपको परफॉर्म करना है। पीपीटी में फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कि यू शुड गिव 1 मिनट, जितना आपको टाइम मिलता है ना पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए, टेक दैट एंटायर टाइम, पूरा टाइम लो वो, ठीक है ना। बड़ी बार ऐसा होता है यू जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड स्टार्ट राइटिंग द, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लुक एट द पिक्चर, गो टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, ठीक है, घड़ी लगी है, लैंप लगा है, चेयर लगी है, चेयर उल्टी है सीधी है, माइन्यूटेस्ट डिटेल्स पे जाओ, उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यू आर जस्ट राइटिंग इट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो उसको पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर सोचो और फिर लिखो, ठीक है ना। जब आपने लिख दिया ना, अब लिखने की टेंशन मत लो कि छोटी होगी बड़ी होगी, वो इतना मैटर नहीं करता। जो आप बोलते हो, स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हो, वो मैटर करता है। तो फर्स्ट इज कि आपने पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व की। सेकंड इज कि आपने एक अच्छी स्टोरी सोची, और थर्ड है कि आपने अपनी नरेशन कॉन्फिडेंटली की। फोर्थ में मानता हूँ कि ग्रुप में कभी कभार होता है कि ग्रुप कभी कभार एग्रेसिव होता है, उसमें टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी अगर आप 2-3 बार जब आपको सुटेबल लगता है अगर आप बोल दो, दैट इज इनफ फॉर यू, बिकॉज 80% आप टास्क कर चुके हो, आप अच्छी स्टोरी लिख चुके हो, यू हैव नरेटेड वेल एंड यू हैव परसीव्ड एवरीथिंग करेक्ट। तो ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है ऊपर नीचे, अगर पहले 3 चीजें ठीक हो और ग्रुप डिस्कशन में 2 या 3-4 बार भी बोल दो, इट्स मोर देन एनफ, आप स्क्रीन इन हो जाओगे। और आपका ओआईआर अगर अच्छा है तो फिर आपको कोई स्क्रीन इन होने से रोक नहीं सकता। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, अगर हम ये मान के चलेंगे सीडीएस और टीजीसी में कि मतलब कि हाइट मैटर करता है सर, कि मतलब कि उनका एक क्राइटेरिया हो सकता है सर फिजिकली, मतलब जो बहुत ज्यादा फिट हो, जिनकी हाइट अच्छी हो और मतलब फिजिक भी अच्छी हो और मतलब उनका एकेडमिक्स भी अच्छा हो, तो उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आर्मी एंड सीडीएस थ्रू सिलेक्शन करने में, बिकॉज मतलब वो पूरे ग्रुप में सबसे अलग दिखेंगे कि फिट है वो और मतलब उनका एकेडमिक्स भी अच्छा है। ये भी एक होता है क्या सर? इफ योर एकेडमिक्स आपका अच्छा है और आप फिट हो तो ये तो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी हो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अब आप उसके पीछे पड़े रहोगे कि आपने एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं लिए, या आपकी हाइट नहीं है, या आपका मसल का साइज कम है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। आप 5 दिन क्या करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसा आप हाँ, हाइट एज पर एज जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो देन इट इज अ प्रॉब्लम बोथ फॉर टीजीसी एंड सीडीएस बोथ। Sir, भैया good morning, sir. Good evening, sir. I'm Vasant Kumar. I actually have a doubt. In WAT, is it necessary to include the word in the sentence? No, it is not necessary. No, not necessary. No, it is not at all necessary. You should So not how do write you it. write It will sentence take. for WAT, sir? See, the problem is with WAT, mostly what people do is that they think a lot. You have only 15 seconds, na? So you can't write the entire word and then start writing. That is not perceived as, I mean, it will not be perceived as intelligent. Na? Think about a word. The first thing which comes into your mind, if it is logical, write it immediately. Okay. Okay, so there's no need to include the word in the sentence, right? No. There are many people who write sentence on the opposite meaning of the word. That is also valid. You can do that. It is not Okay, necessary okay. to include the word. It should convey the sense. That is what matters. sir, Okay, sir. Thank you, sir. should I tell interview officer that I have taken coaching? Yes, you can tell him. You can tell him. Of course, it's a competitive field there. You're going for CDS or NDA entry. इतने लोग आते हैं. They first of all they clear written exams. They finally enter your. Yeah, I mean, इतना competitive field है तो you can go for opt for coaching. उसमें कुछ गलत नहीं है. And be truthful to interviewing officers. उसको बता दो कैसी रही coaching इसमें. Next. Jain sir, I'm Shubham Singh from Varanasi, and first of all, congratulations to you. And sir, I have my SSB in the upcoming month for IMA 150 course. And sir, my question is that कि सर मैंने अपने स्कूलिंग टाइम में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट किया सर, बट
मैंने कॉलेज वाले ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, और एक्चुअली मेरा ड्रीम एनडीए ज्वाइन करना था। मैंने एनडीए तो नहीं क्लियर कर पाया सर, बट मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस क्लियर किया। तो सर ये कितना अफेक्ट करेगा मेरे परफॉर्मेंस पे? As far as this extracurricular activity question is concerned ना, मैं सबको एक बात बोलता हूँ, जब मैंने PIQ भरा था ना, तो उसमें पिछले पेज पे होता ना that you have to write about your extracurricular achievements. So मैंने वहाँ पे nil लिखा था, मेरे पास कोई अचीवमेंट है नहीं, किए नहीं कुछ, क्या लिखूंगा? So this doesn't matter actually. मैं बता दूं आप लोगों को कि and there are people with me, debaters, national level players, बहुत लोग थे, and I wrote nil, NIL nil लिखा था मैंने extracurricular achievement, बस ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, it doesn't matter really. ओके, थैंक यू सर। सर आपने पीपीटीटी में बोला कि तुम सब कुछ ऑब्जर्व करना, तो जैसे आपने बोला था वॉच वगैरह, तो सर आप उसको स्टोरी में लेकिन दिखाओगे कैसे कि सर आपने ये सब ऑब्जर्व किया है? See, that is what I'm saying. उसी में तो that is what I'm saying. उसी में तो that is what you have to apply brain for. अगर वहां पे एक चेयर है, 2 चेयर है, तो वो दूसरी चेयर का भी कोई पर्पस होगा, ठीक है ना? मैं ये नहीं चाहता कि आप वही सोचते रहो, बट इफ यू कैन एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट यू कैन कनेक्ट दोस थिंग्स प्रॉपरली, तो व्हाट डज दिस शो कि अगर एक आदमी ने एक ही चेयर ऑब्जर्व की और आपने 2 चेयर ऑब्जर्व करके उसको स्टोरी में डाल दिया, सो दिस शोज कि यू हैव दैट सेंस ऑफ गोइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, ठीक है ना? आप में इमेजिनेशन है आपके पास, ठीक है? सो दैट विल हेल्प यू। ये और ये चीज जो एसेसर होगा ना, ये वो चीज पकड़ेगा, वो देखेगा कि इस आदमी ने, ये 15 लोग थे, 15 में से किसी 14 ने उस दूसरी चेयर को इंक्लूड नहीं किया, बस इस आदमी ने इंक्लूड किया, सो दिस विल एक्ट इन योर फेवर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसके बारे में सोचते रहो और आपका टाइम निकल जाए, बट इफ यू कैन एट दैट मोमेंट कनेक्ट दोस थिंग्स, तो आपके फेवर में एक्ट करेगा। आई एम जस्ट सेइंग Sir, what should be the approach for blank slide of TAT? blank slide you can prepare it from home only, या फिर आप वहां जाके something comes random at your mind, तो वो भी अच्छा है। if you can prepare from your home then it's all right, but अगर नहीं होता तो you feel कि यार मैं कोई fabricated story नहीं लिखना चाहता, तो go blank, और वहां पे जब 11 stories लिख लोगे तो 12th story will come and something comes pops up into your mind, you can write that, not an issue. Sir, it should be related with our experience, something like that. See, you have experiences in your life, और एक आपको blank slide is a chance given to you, so write something good, a good experience or a good wish or a good imagination that you have, you should write that. इसमें कुछ नहीं है, ये सोचना है, कुछ अच्छा सोचो। Okay, thank you, sir. Welcome. Sir, my name is Saya Wade, and I am currently studying in the 11th standard, and I aspire to join NDA after my 12th. Okay. Mm-hmm. Yes, and like, since you are a recommended candidate, the selection board must have found some OLQs in you. So I just wanted to ask you that how should I inculcate OLQs in my personality so that I won't have any problem in the SSB? Okay. See, first and the foremost is you should be living a. This I always say to people, that you should be living a balanced life. Okay, you should study, you should play, you should take responsibilities if you can. So this is what is expected from a normal guy, a normal man. Okay, that he should be. I'm not saying he should be excellent in every sphere of life, but whatever he does, he should be able to do good in that. You should play sports, of course, if you can. I didn't play sports, so probably I mean that's my fault. Okay? And I have accepted this thing in the interview, that I have not played sports in class 12 or in college. But if you are playing sports, you should play it. It's good for you. If you're studying, you should study good. You should score good marks. Third is you should be aware of your current affairs, the news that goes around the world. You should be aware of that. So these things, there should be a holistic personality. It should not be like you're only studying or you're only playing and you're only interested in something. You should be that. What I'm trying to say is that you should maintain a balance. You should be having a balanced outlook towards life. You should do everything. You should enjoy also. You should go out with friends also. That is also very important. So if you if you want to inculcate those OLQs, there is no need of remembering or memorizing those often qualities. They will naturally come. They are very natural. Every individual must possess them. It's very important for every individual to live a good life. So that's all. Be a holistic man. Do everything that you can. Yes, sir, definitely.
sir. Sir, And how how should you I approach practice for assessment? the obstacle test, sir? The obstacle test is all physical. You should be in a good physical shape. You should be able. You have to run for 3 minutes, so you should be in good physical shape. Focus on your legs, your legs muscle, your arms muscle, your core muscles. Not I'm not saying go for gym or go be completely into fit. Join a gym and pump iron for 2 3 hours. That is not required. But you should be having a minimum level of fitness. That will be checked. But let me tell you, there are people who even after doing 5 obstacles are recommended, and there are people who even after doing 15 obstacles are conference out. So if you can do good, it's good for you. But ultimately, it's what you do in all those 5 days. It's not only about obstacle test. But yes, you should maintain a good physical fitness, normal physical fitness. Focus on your legs, arms, core, chest. That's all. यस सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैं भी सर टीजीसी अप्लाई करता हूँ सर मेरी 78% है सर सीएस में बट मुझे कॉल नहीं आ रहा है 2 बार से और पहले आता था सी टीजीसी का जहाँ तक है ना, अभी टीजीसी में जो कट ऑफ्स हैं वो काफी इंक्रीज हो गया बिकॉज टीजीसी में सीट्स भी लिमिटेड है और टीजीसी परमानेंट कमीशन है, तो काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन रहता है इंजीनियर्स के लिए, ठीक है. सो यू शुड आल्सो ट्राई फॉर सीडीएस. खाली टीजीसी के आप यू शुड नॉट वेट फॉर ओनली यस टीजीएस. बट सर सीएस में तो बहुत कम परसेंटेज जाती है बट मेरी 78% है वो 70 से ऊपर कभी गई ही नहीं आज तक. कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ चेक कर लो. इफ देयर इज ऑफिशियल कट ऑफ आपका है और मतलब आपका कट ऑफ है और फिर भी आपको कॉल नहीं, देन यू शुड ट्राई टू जॉइन इंडियन आर्मी डॉट. हेलो. हाँ हेलो. यस. हाँ हाँ, am I audible अंकुश? और आवाज आ रही है? ऑडिबल. कैरी ऑन. हाँ हाँ हाँ. तो टीजीसी में यार अगर आपका कट ऑफ का परसेंटेज है एंड देन आल्सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल, नॉट गेटिंग अ कॉल, सो यू राइट देम कि मेरा कट ऑफ है फिर भी मुझे कॉल नहीं आई. दे विल सॉल्व द इशू. इसमें तो कोई टेक्निकल ग्लिच लग रहा है मुझे जहां तक. अगर आपका परसेंटेज है देन आल्सो यू आर नॉट गेटिंग अ कॉल. कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है. यस सर. यस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. हेलो सर. जो रैपिड फायर होता है सर उसमें जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछते हैं सर उसी सीक्वेंस में मतलब देना जरूरी होता है क्या? यस प्लीज कैरी ऑन. बोलो. हेलो. हेलो. हाँ प्लीज कैरी. हाँ सर. जी बोल. क्वेश्चन नहीं सर, मैंने मतलब कल या परसों एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे टैट में मतलब ओएल क्यों नहीं दिख रहे थे. तो ऐसा मतलब जरूरी है कि हम अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें तो ओएल क्यों अपने आप आ जाते हैं कंटिन्यूसली या फिर Listen, ये इतना आप अगर इफ यू थिंक लाइक दैट ना तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है. यू जस्ट राइट वट एवर कम्स इन योर माइंड, ठीक है. इतना आप ओएल क्यू दिखाने के लिए मत लिखो, ठीक है ना. उसको दिखाने के लिए लिखोगे देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. पिक्चर आई, कुछ अच्छा सोचो और लिख दो. दैट इतना आप सोचोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. जो रैपिड फायर होता है सर उसमें जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में आंसर देना जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये अगर आप याद रहता है आपको, अगर आपको वो 10-15 क्वेश्चन एक साथ आप यू कैन रिमेंबर देन इट इज ऑल राइट, तो बता दो. बट अगर नहीं याद तो आस्क हिम कि सर व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कोई इशू नहीं है. मैंने भी पूछ रखा 2-3 बार पूछ रखा, मेरे को भी याद नहीं रहता.
अभी कितना याद रहेगा यार, इस हिसाब से याद रहता है उसमें इतना Yes, कुछ नहीं है कि right. आपको हाँ Sir, it affect negative if we can't give answer in sequence. नहीं ऐसा क्यों है? एक तो जहां तक मेरा मानना है इधर से पता चल जाएगा कि आप एक कोच कैंडिडेट हो, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को 10-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 9 या 10 ही याद रहेंगे, ठीक है। और एक कोचिंग वाला कैंडिडेट होगा जिसको 15 के 15 एक से याद रहेंगे। नॉर्मल इंसान को तो मेरे को लगता नहीं कि याद रहेंगे जब तक वो आइंस्टाइन ना हो। मेरे को तो जितने याद होते थे मैं बोलता था, बाकी मैं बोलता था सर प्लीज रिपीट। Okay, sir. Thank you. सर जब एक आपसे क्वेश्चन पूछा था सर कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द आर्मी। यार मेरा Sir. एक्चुअली जब मैं एसएसबी के लिए गया था ना इलाहाबाद, सो मैं नेवल एकेडमी से गया था। उस टाइम में वहाँ पे कैडेट था, तो ही वाज बिट थोड़ा सा वो अम्यूज था कि मैं क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। और वो कह रहा कि तू अभी जुलाई में तो ऑफिसर बन जाएगा, तो आई में आएगा, फिर से 1.5 साल ट्रेन करेगा। तो मैंने उसको बता दिया था कि सर मैं आर्मी हमेशा ज्वाइन करना चाहता था, मैं नेवल एकेडमी होता है कहीं भी होता, मैंने एसएसबी से जाना ही था। तो जो आपका एक्चुअल रीजन है ना वो बोल दो, बाकी ये नहीं आप हर टाइम बोलना कहीं से वेबसाइट से पढ़ के ग्लोरी ग्लैमर ये वो। जो आपका मन करता है, आपके मन में है कि सर मुझे यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, मुझे जॉब अच्छी लगती है, मैं बोरिंग लाइफ में जीना चाहता, जो आपका रीजन है आप बोल सकते हो। पे एंड पर्क्स भी आप बोल सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। Next. Good evening, sir. गुड इवनिंग। So I want to ask, sir, I given NDA 2020. सर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, बट सर मेरा स्कोर अच्छा नहीं गया है। और सर मैंने मतलब साथ में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था सर, बीए कर रहा था, बट सर क्या हुआ है कि मैं सर एग्जाम दे नहीं पाया था, और उसके बाद सर बाकी मेरे एग्जाम कैंसिल हो गए थे। तो बट सर अब मतलब ये लगता है कि मतलब मेरे को सर फर्स्ट ईयर दोबारा करना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। तो सर थोड़ा सा सर ये एनडी का ये लगता है कि सर नहीं लगा, तो मतलब सर ये लगता है कि मतलब सर फेलियर का सर मतलब उसको डील नहीं कर पाता, मतलब सर कि आगे क्या करूंगा, सोसाइटी क्या कहेगी, मतलब सर इस टाइप के थॉट्स आते हैं। तो उसको मतलब सर कैसे मतलब उससे निकले सर? देखो, जो द डैमेज हैज बीन डन, जो खराब होना था वो हो चुका है, ठीक है ना। अब आप टाइम में वापस जाके अपना फर्स्ट ईयर बचा नहीं सकते, आपका फर्स्ट ईयर जा चुका है, ठीक है। यस सर। अगर आपके पास टेक्निकल इंटरव्यू स्कीम की एसएसबी है, गो फॉर दैट। अगर नहीं है, अपनी ग्रेजुएशन जो है उसको कंप्लीट करो। फर्स्ट ईयर है, वापस देना है वापस दो, उसको अच्छे से करो, और साथ साथ सीडीएस की प्रिपरेशन चालू करो, ठीक है। डोंट वेट फॉर इट, क्योंकि आपकी ना तो तैयारी में सोसाइटी आपके साथ थी ना, बस जब आप कुछ बन जाओगे तो सोसाइटी साथ आ जाती है। बाकी ये जो दिन होते हैं ये आदमी ने अकेले निकालने होते हैं। Yes, right. यस, थैंक यू सर। सर आपने कोई प्लान बी बनाया था कि अगर इन केस मतलब 0.1% अगर मेरा आर्मी नहीं निकलता है, मेरा फिर कोस्ट गार्ड भी गया और आर्मी भी गया, कि मतलब कि सर आप श्योर थे एकदम कि हो जाएगा? नहीं, देखो, जब मैं कोस्ट गार्ड में रिकमेंड हुआ था ना, तब मेरा रिटर्न क्लियर था और मैंने सोच के गया था यहाँ। और मैं जब एकेडमी ज्वाइन की थी तब मैंने बस सोच ली थी कि मैं आईएमए का एसएसबी देने आऊंगा। मैं आईएमए का एसएसबी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आर्मी एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था। तो ये मैं घर से बोल के गया था कि जो भी हो जाए मैं आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है। रिकमेंड होने के बाद मेरा मेडिकल में कुछ इशू आया था, तो उस टाइम पे मुझे चॉइस बनानी थी कि मैं क्विट करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेडिकल मेरा पेंडिंग था और जो नेवल एकेडमी थे वो मुझे वापस बुला रहे थे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे क्विट करना पड़ा। उस टाइम पे काफी लोगों ने बोला कि नहीं करना चाहिए, पहले श्योर हो जाता, मेडिकल एंड हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी वो दिखाई, जिसको बोलते हैं आप दलेरी कह लो या बेवकूफ़ी कह लो, और मैंने क्विट कर दिया। और फाइनली फिर मैं मेडिकल फिट भी हो गया और आज मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लान भी आपके पास होना चाहिए डेफिनेटली, मैं आपको बोलता हूँ। प्लान भी अगर आप रख सकते हो तो रखो, बट प्लान बी को प्लान ए मत बना देना। राइट सर फिर आपने अभी सीडीएस ही दिया था सर इस बार का, जो मतलब नहीं, इस बार का तो मैं दे नहीं पाया। इस बार का तो मैं दे ही नहीं पाया। नहीं, इस बार का तो मैं दे ही नहीं पाया। इस बार तो मैं एकेडमी में था 2020 के टाइम पे। मैंने 2019 2 का सीडीएस था, ये मेरा वो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थोड़ा सा ना उसका ही बताना, नेवल एकेडमी जो ट्रेनिंग होती है ना, तो थोड़ा बहुत रगड़ा वगैरह, ठीक है। थोड़े सा किस्से सुनाना सर आज। ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। सर जो सीडीएस एंट्री के थ्रू जाते हैं सर, उनसे क्या एनडीए के जो एस्पिरेंट होते हैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है? यार देखो,
जब आप एक ग्रेजुएट बनकर जा रहे हो तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। अभी आप आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए में सम 630 कुछ कैंडिडेट्स वर रिकमेंडेड, वहीं पे सीडीएस में 130 कैंडिडेट्स वर रिकमेंडेड। ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, बट एक ग्रेजुएट एंट्री के कैंडिडेट से कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, वो ग्रेजुएशन करके आया, वो एक अडल्ट है, कॉलेज पढ़ ली, उसने दुनिया देख ली, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती है डेफिनेटली। हमारे बीच निकिता भी है। आपको याद नहीं होगा, हमारा सेक्शन ई था जो नहीं मेरे को याद है बिल्कुल अच्छे से। याद है? अच्छा remember, निकिता बिल्कुल बिल्कुल अनम्यूट करो ये भी एनसीसी कैडेट है, ये भी जाती है एसएसबी देने चुपचाप और बिल्कुल नहीं बताती क्या रहा है इसका रिजल्ट, है ना? चलो बढ़िया, करो भाई, क्वेश्चन पूछो। Sir, how much watching online videos which are available on YouTube from various academies help in various tasks of GTO like PGT, HGT, and etc. Yeah, it does help. It does help. It does help to a great extent. ये आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। ये आई हैव वॉच्ड मेनी ऑफ द वीडियोस और इसने मेरे को काफी हेल्प किया। बेसिकली पीजीटी एज वेल एज पीजीटी इज कंसर्न यार, उसमें 2-3 प्रिंसिपल्स ही हैं, उसमें कुछ इतना है नहीं। वंस यू गेट दोस प्रिंसिपल आपके लिए हर टास्क बड़ा इजी हो जाएगा। बट इफ यू डोंट गेट दोस प्रिंसिपल्स तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और जीटीओ आपको प्रेशर में लाके आपकी गेम ओवर कर देगा। ठीक है, सो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, वो 2-3 प्रिंसिपल्स ही हैं। अच्छे वीडियोस हैं, काफी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। और जब वो करने जाए उससे पहले उसको पॉज करो, उसके बारे में सोचो कि आप होते तो आप क्या करते। तो ये आपको हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है रोहन सर ने कि भाई आप ना टास्क से पहले उसे पॉज करो और अपने आइडियाज जनरेट करो कि आप उसकी जगह होते तो आप उसे कैसे फट्टा बल्ली लगा के कैसे उसे सॉल्व करते। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच सर। Sir, hello sir. I'm Vasant Kumar. So actually, sir, I'm a very bright student. Actually, I scored 93% in my class 10 and 92% in my class 12. But actually, I failed class 11 once. So would that affect, and how should I tackle it when the interviewing officer asks why there's a lag in 1 year? Can you tell me about that? You scored 93 in class 10th and 92 in class 12. Yes, sir. You have covered your loss. You failed in class 11, that's all right, and you have covered that in class 12. Answer him, tell him that sir, I've again become serious and I've got 92 in class 12. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Next. So share your experience of IO. Share my experience of which? What? Interview. Personal. अच्छा, interview. Personal interview यार, इस टाइम पे ना during Coast Guard my personal interview lasted for 1 hour and 40 minutes. That was the longest interview in my entire batch. In Allahabad, my interview lasted for 25-28 minutes. He didn't ask much. उसको मेरी personal life के बारे में पूछना था. Then he asked me about my Naval Academy routine. और उसके बारे में कुछ ऊपर नीचे उसने बस इधर उधर खेला थोड़ा सा. He tried to take that my interview to the tangent of current affairs and worldly affairs, but I told him कि सर मैं तो academy से आया हूँ, मेरे पास शक्ल देखने टाइम नहीं है, मैं न्यूज़पेपर कहाँ से देखूंगा. तो बस इतना ही था. इस टाइम इंटरव्यू तो टफ नहीं था. मेरा जो पोस्ट का इंटरव्यू था ना 1 hour and 40 minutes का, वो काफी टफ था. उसमें उसने मुझे काफी ग्रिल किया था. उसमें उसने वो एक बात मानने को रेडी नहीं था कि मैं घर पे पढ़ाई करता हूँ. उसके अकॉर्डिंग मैं घर पे सिर्फ मजे करता हूँ. तो उसको मुझे कन्विंस करने में काफी टाइम लग गया था. फिर वो कन्विंस हो गया था. हाँ, फाइनली क्या हुआ कि अंकुश, उसको मैंने जब बताया सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, तो वो मान नहीं रहा था. अल्टीमेटली ही एग्रीड टू इट. उसने मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, और उस टाइम तैयारी भी अच्छी थी. तो फाइनली ही एग्रीड कि यस चलिए पढ़ाई करता है घर पे. यस, राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ओवर. माइंडसेट क्या होना चाहिए सर
सर आपके अकॉर्डिंग जो 5 days होता है? माइंडसेट होना चाहिए कि यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। और द मोमेंट सर उसका जो यू स्पीच होना स्टार्ट चाहिए टेकिंग सर, मतलब माइंडसेट इज स्पीच कि मतलब यू कि शुड सर एंजॉय द कि प्रोसेस। हाँ, गो ऑन। सर एक्चुअली जो स्पीच उसका मतलब क्या होना चाहिए सर, कि मतलब जैसे नॉर्मल उसका होता है या फिर सॉफ्ट या फिर डोमिनेंट, क्योंकि उस पे भी डिपेंड करता है ना सर किस हिसाब से एक बंदा बोल रहा है। सी माइंडसेट जहाँ तक है, आपका माइंडसेट जो होना चाहिए, यू शुड बी एंजॉयिंग द प्रोसेस, ठीक है। इफ यू स्टार्ट टेकिंग स्ट्रेस तो वो आपकी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा। और वो एसेसर्स हैं, वो स्ट्रेस ढूंढ रहे हैं कि कौन स्ट्रेस में है कौन नहीं है। और स्ट्रेस छोटी छोटी बातों पर लेना इज नॉट अ वर्च्यू ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो वो अवॉइड करो, प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। और जहाँ तक आपने स्पीच की बात की, अब आपको लेक्चरेट बोलना है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड वॉइस, ठीक है ना, अच्छे से आंखों में आंखें डाल के। जीडी नरेशन जीडी में बोलना है, वहां पर भी अगर आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। रिपीटर बैठ में अच्छे से दम से बोलो, दे विल लिसन टू यू, ठीक है। वहीं पे पर्सनल इंटरव्यू में बात करनी है, नॉर्मली बात करो, वहां पे दम दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली बात करो जैसे करते हैं, इट्स वन वन इंटरेक्शन, नॉर्मली बात करो। जहाँ दम दिखाना वहां दम दिखाओ। सर Sir, actually, you've been recommended for Indian Coast Guard also. So, and you've been recommended for Army. So, what is the pros of Indian Army compared to Indian Coast Guard, sir? Can you tell me about that? See, Coast Guard has its own pros and the Army has its own pros. I'll talk about, first of all, I'll talk about the pros of Coast Guard. Coast Guard, as you know, is a young force, okay, so it is developing. The requirement of officers is much more, and and it has only one way entry. That is after graduation, you have to join as assistant commandant, general duty, GD. That is the executive branch, and the entry is only, you have only that entry. So definitely there is no stagnation as far as promotion is concerned. People get good promotions there, and all of us, my batchmates, we were 15 of us were there. All of us are potential director generals. That is the topmost one holding the rank, director general of Coast Guard. So all of them are potential director generals, okay. Secondly, you will get the pros of having promotion, having this you're stable in good cities, Kochi, Goa, Mumbai. You'll be located in good cities. Third, you will be visiting a lot of foreign countries. There are my co-students who are going to Singapore right now, okay. So traveling, if traveling is what you want, you have to visit foreign countries. You don't want to avoid, you want to avoid that, what we say, stagnation, promotion, you should go for Coast Guard. Army is a different field. As far as the Army is concerned, it is the defense. It is a defense force, and Forge in India means army. It has its own aura. It has its own persona. Secondly, there are monetary benefits also. There is a MSP known as military service pay that is only granted to Army, Air Force, Navy, and not to Coast Guard. There are some discussions going on. Coast Guard might get it. So it depends upon your interest. So, do Coast Guard officers get lifetime pension? No, Coast Guard is not comes under, does not come under lifetime pension. They get NPS, National Pension Scheme. That NPS. is what. Okay, okay. सर एक डाउट So, है which do you think is beneficial, sir? National pension scheme or the old pension scheme? See, it depends. There are certain cases when NPS is also good. There are certain officers who have a good length of service. So what happens is their NPS is much more than the normal pension. So it varies, but generally it is seen that the other pension scheme is much better. Okay, thank you, sir. डाउट है सर, आपने मतलब सर, हेलो सर, Yeah, go on. सर आप एक डाउट है, मतलब आपने कब से स्टार्ट किया था, मतलब अपना ये मतलब स्टार्ट 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, ठीक है। सो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पेपर के बाद आई स्टार्टेड। पेपर से पहले भी ट्राई किया था एक बार मैंने सबसे पहले सीडीएस दिया था, सीडीएस 2018-2। सो उसमें तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। सीडीएस 2019-1 दिया, उसमें ओटीए क्लियर हुआ, बट मैं ओटीए मैंने टिक नहीं किया था। आई क्रॉस द कट ऑफ, बट मैंने ओटीए मार्क नहीं किया था उसमें। और उस टाइम मेरे रिटन में 113 थे और 113 नंबर थे, और आईएमए 115 पे क्लोज हुआ था।
तो उसके बाद 2019 2 मैंने दिया तो उसमें मेरा दोनों क्लियर हो गए। तो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, एंडिंग में मतलब ऑलमोस्ट 2019 के क्लोज आते आते स्टार्टेड एक्चुअल सही प्रिपरेशन जो बोलते हैं ना, घर पे रह के सही से प्रिपेयर करना। सर आपने 19 में क्लियर किया गया, मतलब अभी 2019 सीडीएस 2। सर प्रिपरेशन मतलब कैसे सर, आपने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर किए थे क्या, ये कुछ स्पेशल कुछ मतलब प्रिपरेशन में ये है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है फिर उनको टाइम देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स देना पड़ेगा, फिर डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर्स को देना पड़ेगा, एक वीकली प्लान, मंथली प्लान, डेली प्लान रखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। सर अभी आपने सीडीएस 2 2019 का क्लियर करके गया ना सर? हेलो हेलो सर 2019 में क्लियर किया आपने सीडीएस 2? हाँ सीडीएस 2। ओके सर। सर वॉइस कट रहा है सर। सर एक और एक डाउट है सर, आपने मतलब सेल्फ प्रिपरेशन किया था कि मतलब ऐसा कुछ कोचिंग विचिंग? हेलो हेलो सर, हेलो आर यू देयर? हाँ हेलो। हाँ सर मैं बोल रहा था कि आपने जो एसएसबी के लिए सेल्फ प्रिपरेशन किया था कि कुछ कोचिंग लगाया था या फिर कुछ? मैंने कोचिंग एक बार जब लगवाया तो मेरा कोचिंग के साथ फ्रैंकली टेलिंग मेरा कोचिंग के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं जब कोचिंग बाहर हूँ तो कोस्ट गार्ड के टाइम पे मैंने कोचिंग ली और सीडीएस आईएमए के टाइम पे तो नेवल एकेडमी में था। तो मैंने उसके अलावा जब मैंने एक बार एफए के टाइम पे कोचिंग ली तो बाहर हो गया था। कोचिंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ये जो आपने किया अभी एसएसबी उसमें बिना विदाउट किया है ना, विदाउट सेल्फ किया है ना सर? बिल्कुल, वो तो जो आईएमए वाला एसएसबी था वो तो उसमें तो कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पाया। मेरा 15 को रिपोर्टिंग थी और 14 को मैं एकेडमी से निकला था, उसमें टाइम ही नहीं मिला प्रिपरेशन का। Hello, sir. Yeah, hello. Sir, they do any difference between freshers and repeaters? फ्रेशर्स को नहीं, डिफरेंस है कि ओनली आपका जो ग्रुप होगा वो फ्रेशर्स का बनेगा, रिपीटर का जो ग्रुप होगा वो रिपीटर्स का बनेगा। अदरवाइज थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, फ्रेश थोड़े नए होते हैं तो उनको थोड़ा रहता है। बाकी एज सच देयर इज नो डिफरेंस। कभी कभार रिपीटर ज्यादा हो जाता है, कभी रिपीटर हो जाते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। बट हाँ, जो रिपीटर होता है उससे कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रह सकती है क्योंकि वो प्रोसेस देख चुका है। बट आई गेस मोर और लेस अभी ये इतना फर्क रहा नहीं है। तो सर एक और डाउट है सर, आपका जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ था उसमें सर मतलब आपने नरेट किया था पूरा इंसिडेंट या फिर किसी और ने किया था सर? हेलो 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 यस सर। हाँ, तो ग्रुप प्लानिंग में मैंने नरेट किया था, बिल्कुल ग्रुप प्लानिंग मैंने नरेट किया था। कुछ नहीं, वहाँ पे सिचुएशन थी 1 2 3 4, उसको प्रायोरिटाइज करके अपने रिसोर्सेज को यूज करना, नेचुरल ब्रेन लगाना उसमें। आप काफी बार मैं देख चुका हूँ, पीपल अप्लाई अ लॉट ऑफ ब्रेन, उसकी जरूरत नहीं है। नेचुरली सोचो, अभी किसी को लगी है तो उसको फर्स्ट एड देके एम्बुलेंस में बिठा के भेजेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसमें कुछ। अब एम्बुलेंस के टायर मत गिनने लग जाओ या उसके दरवाजे मत खोलना, मतलब कुछ फालतू मत करो। जो नेचुरली एक्सपेक्टेड किया जाता है इंसान से वो करो बस। तो सर आपने कैसे मतलब सारे मतलब अग्री हो गए कि आप नरेट कर दो सर? मैं बताता हूँ उसका क्या था कि देयर वर सर्टेन इश्यूज। वही मैंने बोला ना, वो देयर पीपल इन माय ग्रुप जो कि थोड़ा सा मतलब
यही कर रहे थे, ज्यादा अप्लाई कर रहे थे ब्रेन, ठीक है। 2-3 वैसे थे और 2-3 थे जो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रहे थे। और मैं जो था, मैंने ये सोचा कि मैं नॉर्मली सोचूंगा जो मुझे लग रहा है। तो जब मैंने वो सिचुएशन का आंसर दिया तो डेफिनेटली वो दे ऑल, उनका एक बहस चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बीच में जब मैंने आंसर दिया तो डेफिनेटली एग्रीड, ठीक है ना। 2 लोगों की बहस चल रही थी, तीसरा ऑप्शन उनको मिल गया, उन्होंने बोला ठीक है ये ठीक। बाकी डेफिनेटली जब आप बोलो तो थोड़ा सा यू शुड स्पीक विद सम कॉन्फिडेंस, और वो दिख जाता है कि ये आदमी बोल सकता है। जैसे मैंने पीपीटी जब हुआ तो उधर भी मैंने नरेट की थी स्टोरी, और इसमें प्लान में मैंने नरेट किया था। शायद से जब आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अच्छे से बोलेंगे, तो ग्रुप आपकी नरेशन को एक्सेप्ट करता है। सर मुझे एक पूछना था कि मतलब अभी आपकी एज मतलब आई एम 23। ओके सर। सर मुझे एक पूछना और एक डाउट है सर, एज अ मतलब मैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की तैयारी कर रहा हूँ सर, मुझे कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे? एनसीसी स्पेशल एंट्री आप जा रहे हैं तो यू शुड बी आपको एनसीसी का सब पता होना चाहिए, आप फिट होने चाहिए, ठीक है। आप एक कैडेट हैं तो जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, कैडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो आपने सब बातें होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो बाकी तो और सर एनसीसी के बारे में सब नॉलेज रखो, फिजिकली फिट हो जाओ। अगर आपको लग रहा है आप ओवरवेट हो तो वेट कम करो, ठीक है ना। दीज ऑल आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनसीसी कैंडिडेट। और आप तो सी सर्टिफिकेट होंगे तो आपको तो होगा ही डेफिनेटली। ये सर मेरे पास सी सर्टिफिकेट भी और रिपब्लिक कैंप भी किया हूँ। हाँ डेफिनेटली, ये आपको सारा पता होना चाहिए इंडिया के बारे में, ये सब कुछ थोड़ा जीके वीके ब्रश अप करके जाना। Yes sir, thank you. Sir, how you write your career story and what type of pictures you put in front of you, sir? Hello. Please, please repeat your question. Sir, how you write your TAT story and what type of pictures you put in front of you to write? You first of all, when TAT story comes, it is much clearer than your normal PPT story. So take your time, observe it, and write whatever comes in your mind. It should be something good. It should be something natural. Do not exaggerate. Do not be something. I will only write positive. I will only write positive. If there is a negative picture, perceive negative and turn it into a positive picture. Okay. Sir, in which attempt were you recommended, sir? Oh, okay. So I gave my first attempt was 10+2 technical entry. I was screened out there. ठीक है. मैंने वहाँ पे भी I took coaching and I was screened out. Then I gave FCAT. There again I went for coaching and I was conferenced out. Then I went for Coast Guard. I didn't took any coaching and I was recommended. Then again for IMA, no coaching, was recommended. Okay sir, thank you. Wait a minute guys. मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ अंकुर। Yes sir. ओके भाई कोई लैपटॉप से लाइव बैठा है? लैपटॉप चला रहा है कोई? लैपटॉप से है कोई? लैपटॉप से गाइस एनीवन? नहीं, कोई नहीं है? No sir. Okay, carry on the discussion. Carry on. Yes, next question, fast. We'll bind up in 10 to 15 minutes more, okay? वहाँ पे जैसी स्टोरी होगी दिक्कत आएगी ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं, मैं I used to make only one story. ओके सर। सर और आपने मतलब नॉर्मली ड्रेस कोड क्या मतलब कंप्लीट फॉर्मल्स रखना होता है सर, और जो टास्क के लिए मतलब वाइट ड्रेस? आपकी मर्जी है। फॉर्मल्स इज इन फॉर्मल्स